to the new session of Current Affairs 10 October 2021 on Select Efforts. And if you are new to the channel, please don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon also to get the notifications. And if you're preparing for any exam like Bank, PO, RRB, SSC, CHSL, PCS, you can mail us at selecteffort@gmail.com. And if you want to indulge in the conversation with us, you can enter into the Telegram group using the link. You will get many activities over there to boost your competition, confidence, and knowledge. So don't waste more time and click on the link and follow us on Telegram. And for now, let's begin. Okay, today's first question. Who got the 2021 Nobel Peace Prize? Is it Maria Ressa, Dmitry Muratov, C, A and B both, or none of these? And the answer is C, both. Maria Ressa and Dmitry Muratov. They have got the Nobel Peace Prize. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. अब democracy और lasting peace को establish करने के लिए freedom of expression जो है वो सबसे main चीज है, important चीज है. तो इसको सेफगार्ड करने के लिए ही इन दोनों को ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. हु गॉट द 2021 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें साफ लिखा है अब्दुल रजाक गुरना won the 2021 Nobel Prize for Literature. So your answer is D. Next question. Who has been awarded Nobel Prize of Physics? और यहाँ आंसर पहले से ही फ्लैश हो रहा है. Next question. Who has been awarded Nobel Prize for Physics 2021? अब फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है? और यहाँ ऑलरेडी पिक्चर है. सुयोकोरो मानाबे, क्लॉस हेजलमैन और जॉर्जियो पेरिसी, sorry. So the answer is C. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in Physics 2021 to Suyoukoro Manabe, Klaus Heselmann, Giorgio Perissi. Jointly won the 2021 Nobel Prize in the Physics for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems. The Nobel Prize in Physics is awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden. Right? Next question. Which train has been launched by Ministry of Tourism and IRCTC, that is Indian Railway Catering and Tourism Corporation, under initiative देखो अपना देश? तो देखो अपना देश के अंदर ये एक टूरिज्म मिनिस्ट्री और IRCTC ने एक ट्रेन लॉन्च करी है. उसका नाम क्या है? जनशताब्दी एक्सप्रेस, देखो देश एक्सप्रेस, द बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर या द फैम देखो देश एक्सप्रेस? And your answer is C, the Buddhist Circuit Train Fam Tour. Ministry of Tourism in association with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation, IRCTC, has organized the Buddhist Circuit Train Fam Tour as part of the Union Government's Dekho Apna Desh initiative, right? दोस्तों ये लाजवाब ट्रेन है, बाहर से ऐसे दिखती है और देखिए अंदर इसके कंपार्टमेंट और ये फूड खाने का सेक्शन. सो इट्स marvelous, right? Next question. Which state has banned bottled water? अब ये कौन सा स्टेट है जिसने bottled water को बैन कर दिया है? Is it Nagaland? Is it Odisha? Is it सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश? अब ये इतना सुंदर दृश्य है और ये पिक्चर से क्या आपको पता चल रहा होगा कि ओडिशा तो ये नहीं है, तो मे बी नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश. जो लोग घूमे हुए हैं, देखा हुआ है, तो you will be able to guess it, and it's Sikkim. So the answer is C. ये चांगो लेक है, ये नानचिम है और ये गैंगटॉक है और ये नानचिम में ही बुद्धा पार्क है यहाँ पे. So the scenery is quite great. And सिक्किम के बारे में थोड़ा जान लेते दोस्तों. सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक है. 100% लिटरेसी रेट यहाँ पर है, 100% पॉलिथीन फ्री है ये, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ होती है सिक्किम में और 100% ओपन डेफिकेशन फ्री. इसका मतलब ये है कि आप वहाँ खुले में शौच नहीं कर सकते. और लेप्चा और भूटिया यहाँ के दो ट्राइब्स हैं.
तो दोस्तों सिक्किम के बारे में अगर और भी डिटेल जानना है और भी अच्छे से जानना है तो हमारी ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट है इसी चैनल पे, आप जाइए और उसको देखिए, आपको जरूर से पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बट आपको जाके देखनी चाहिए, इट्स रियली नाइस बिकॉज सिक्किम के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिड प्राइम मिनिस्टर लॉन्च 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्लांट? अभी कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में हो रहा है? उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली? एंड योर आंसर इज ए। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में प्राइम मिनिस्टर ने 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्लांट लॉन्च किया है। सौगात है ये उत्तराखंड के लिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 35 pressure swing absorb oxygen plant to the nation through video conferencing during an event at AIIMS Rishikesh, Uttarakhand. Right? Which medal is won by India in World Women Chess Championship 2021? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज। वर्ल्ड विमेन चैंपियन चेस चैंपियनशिप में विमेन्स ने खिताब जीता है और कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर या नन ऑफ दीज? तो ये है सिल्वर। जी हाँ, रनर अप रही है इंडिया की विमेन टीम। इंडिया क्लेम सिल्वर इट्स फर्स्ट एवर मेडल एट इवेंट आफ्टर विन ओवर अ स्ट्रॉन्ग जॉर्जियन टीम। तो जॉर्जिया से जीती है इंडिया, सिल्वर हासिल किया है, गोल्ड हासिल किया है रशिया ने। राइट? अंडर विच स्कीम कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक begged 2 awards from PFRDA, that is Pension Fund Regulatory and Development Authority. अब ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को 2 अवार्ड मिले हैं। कौन सी स्कीम के तहत? पेंशन योजना के तहत, अटल पेंशन योजना या अटल पेंशन विकास योजना या नन ऑफ दीज? So the answer is B, अटल पेंशन योजना के तहत कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को 2 अवार्ड मिले हैं। स्पॉन्सर्ड बाय कैनरा बैंक। अब ये जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है ये कैनरा बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। हैज बैक्ड 2 national awards, APY Big Believers and Leadership Capital for significant enrollment under the Atal Pension Yojana from the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Right? Next question. The Gandhi Museum was inaugurated in dash. कहाँ इनॉग्यूरेट हुआ है गांधी म्यूजियम? नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में? दोस्तों इसका आंसर है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में 152nd बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, उसके ओकेजन पर द रिनोवेटेड गांधी म्यूजियम वाज इनॉग्यूरेटेड एट द हिस्टोरिक गांधी आश्रम ट्रस्ट एट नोआखली इन बांग्लादेश। याद रखेंगे, नोआखली बांग्लादेश में जो गांधी जी का म्यूजियम था उसको रिनोवेट करके उसको गांधी जी के 152nd बर्थ ओकेजन पर लॉन्च किया गया है। राइट? ये है बांग्लादेश का फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्लैग द सुदर्शन भारत परिक्रमा कैंपिंग? सुदर्शन भारत परिक्रमा करके एक कैंपिंग है, वो किसने फ्लैग किया? तो पिक्चर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, या योगी आदित्यनाथ ने, नितिन गडकरी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी ने? So the answer is D, Amit Shah. Union Home Minister Amit Shah flagged off all India car rally Sudarshan Bharat Parikrama of the National Security Guard on October 2nd, 2021 as a part of आजादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों इससे रिलेटेड हम पहले भी काफी न्यूज लेकर आए हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं और ये भी उसी का एक पार्ट है। राइट? और दोस्तों एक ये क्वेश्चन, हु हैज वन द लीवा मिस लीवा यूनिवर्स 2021? ये एक ब्यूटी पेजेंट था और ये इसमें कौन जीता है इस बार? मॉडल हरनाज संधू, सोनल कुकरेजा, अवृति चौधरी या फिर नन ऑफ दीज? तो द आंसर इज ए, हरनाज संधू। ये हैं हरनाज संधू जो इस बार ये खिताब जीती हैं, और ये है आवर्ती चौधरी जो कि पिछली बार ये खिताब जीती थी, लास्ट टाइम विनर ऑफ 2020, और ये है सोनल कुकरेजा जो रनर अप रही इस साल की। राइट? मॉडल हरनाज संधू फ्रॉम चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ से आती है, हैज इमर्ज एज अ विनर ऑफ लीवा मिस लीवा यूनिवर्स 2021। राइट? भाई दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हिच कंट्रीज फिल्म क्रू रीच्ड
ऑर्बिट टू मेक द फर्स्ट फिल्म इन स्पेस। मतलब ये जो क्रू है ये पहुंच गया स्पेस में मूवी बनाने के लिए। Isn't it great? तो ये रशिया है, चाइना है, नॉर्वे है या स्पेन है? और ये दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच कंट्रीज फिल्म क्रू रीच्ड ऑर्बिट टू मेक द फर्स्ट फिल्म इन स्पेस। यानी कि ये पूरा का पूरा फिल्म क्रू उठ करके चला गया ऑर्बिट में एक फिल्म बनाने के लिए स्पेस में, राइट? अब ये कौन सी कंट्री का क्रू है? रशिया, चाइना, नॉर्वे या स्पेन? एंड योर आंसर इज ए, इट्स रशिया। जी हाँ दोस्तों, रशिया का फिल्म क्रू चला गया ऑर्बिट पे स्पेस पे एक मूवी बनाने के लिए। A Soyuz spacecraft carrying a Russian film crew docked at the International Space Station on 5th October after a short flight from Earth to begin a 12-day movie shoot in orbit. है ना कमाल की बात? वो कहावत है ना दोस्तों की, जैसे कभी बोलते हैं ना कि किसी की सोच को बताने के लिए कि कभी यार दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तू कहाँ रह गया अभी। तो अब सच में वो दिन दूर नहीं है जब चांद पे पहुंचेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has declared combined areas of the Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary as a tiger reserve? अब ये दो पार्क थे, गुरु घसीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको एज अ टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये किस स्टेट में हुआ है? छत्तीसगढ़, झारखंड, चेन्नई या नन ऑफ दीज? तो आपका आंसर है छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, और ये चौथा टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में ही। National Tiger Conservation Authority has approved the Chhattisgarh government's proposal to declare the combined areas of the Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary as a tiger reserve. Right? याद रखेंगे। Next question. Which state Chinor rice has been given GI tag recently? Is it Maharashtra? It is Madhya Pradesh? Is it Meghalaya? Or both A and B? So it's D. जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली मेनली तो मध्य प्रदेश में ग्रो किया जाता है चिनौर राइस, लेकिन महाराष्ट्र में भी इसका कुछ पार्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन टेकअवे में, चिनौर राइस इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन बालाघाट रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, बट इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन भांगदारा महाराष्ट्र, फॉर विच द जीआई टैग वाज क्लेम्ड बाय महाराष्ट्र आल्सो। तो ये दोनों को ही जीआई टैग मिल गया है चिनौर राइस को, राइट? Next question, which vaccine has been approved by WHO for malaria? पहले तो कोविड की बताओ भाई। Okay. Next question, which vaccine has approved by WHO for malaria? Is it RTS? It is S/AS01 या C both A and B या none of these? भाई पहले तो कोविड की बताओ, नहीं मलेरिया की वैक्सीन आ गई है भैया। चलिए तो आंसर है सी, ARTS एंड B S/AS01 दोनों ही जो वैक्सीन है वो WHO ने अप्रूव कर दिया है फॉर मलेरिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज रिकमेंडिंग widespread use of the RTS S/AS01 malaria vaccine among children in sub-Saharan Africa and other regions with moderate to high pressure falciparum malaria transmission, right? तो अब ये हाई मलेरिया ट्रांसमिशन जो है इसके लिए सहारन अफ्रीका में भी उसके रीजन्स में और कुछ मॉडरेट टू हाई प्रेशर रीजन्स भी हैं उन पे भी Which vaccine has been approved by WHO for malaria? अब WHO ने मलेरिया के लिए एक वैक्सीन को अप्रूव किया है, या वो RTS है या वो S/AS01 है या बोथ A and B है या फिर D none of these है। तो आपका आंसर है C।
RTS और S/AS01। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है वाइड स्प्रेड यूज, मतलब भारी स्तर पे यूज किया जाए RTS को और S/AS01 को मलेरिया वैक्सीन के तौर पे बच्चों के बीच में। और ये प्रैक्टिस सब सहारन अफ्रीका में और उसके अदर रीजन विद मॉडरेट टू हाई पी पैल्सीपेरम मलेरिया ट्रांसमिशन, यानी कि जो हाई टू मॉडरेट मलेरिया ट्रांसमिशन है उस सब में यूज करने के लिए इसको कहा गया है। सो WHO ने ये 2 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है फॉर मलेरिया। इनसे बोलो पहले कोविड की वैक्सीन तो आ जाए, मतलब उस पे काम होना चाहिए भाई। खैर कोई नहीं। Which day is celebrated as World Migratory Bird Day? कौन सा दिन एज अ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के तौर पर मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर? तो दोस्तों सी है आपका आंसर, 9 अक्टूबर। एवरी ईयर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑफिशियली सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन अ ईयर सिंस इट स्टार्टेड इन 2006। 2006 से स्टार्ट हुआ था और ये हर साल 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले तो सेकंड सैटरडे ऑफ मई को मनाया जाता है और उसके बाद सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। तो इस बार मई का सेकंड सैटरडे पड़ा था ऑन फर्स्ट was first on 8th में। हाँ, this year it was first on 8th में। तो ये जो सेकंड सैटरडे पड़ा था मई में, वो पड़ा था 8 मई को, और उसके बाद दूसरा 9 अक्टूबर को पड़ा है सेकंड सैटरडे। तो थीम था इस बार का सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड पोस्ट डे? कौन सा दिन वर्ल्ड पोस्ट डे के नाम से मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 7th, 8th और 9th, और आपका आंसर है डी। जी हाँ दोस्तों, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के तौर पे मनाया जाता है ग्लोबली। इसका पर्पस है कि वर्ल्ड पोस्ट डे इज टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर द रोल ऑफ द पोस्टल सेक्टर इन पीपल्स एंड बिजनेसेस एवरीडे लाइफ। लोगों के बिजनेस में और पीपल की डे टू डे लाइफ में पोस्टल लाइफ का, पोस्टल सेक्टर का क्या योगदान है, उसको मद्देनजर रखते ही दिन मनाया जाता है, राइट। So that's the end of the session, guys. Thank you so much for listening me so patiently, and if you like the video, please turn the great thumb blue and don't forget to subscribe the channel, hit the like button and hit the bell icon also so that you can get notification for the next video we upload. And yeah, share this with your family, relatives and everyone, and make them dive into the sea of knowledge, right? So you will hear me day after tomorrow. अब मेरे sessions रोज नहीं आएंगे, एक दिन एक छोड़ के आएगा. So I'll meet you on alternative days. So yeah, you'll hear me day after tomorrow. So till then, bye bye. Nina saying sayonara.